ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کی جائیں گی۔ ایٹمی پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے ہے، جوہری ہتھیار تیار نہیں کیے جا رہے۔ جوہری ٹیکنالوجی کا مقصد قومی فلاح اور عوامی ضروریات پوری کرنا ہے۔ ایٹمی توانائی تنظیم کے دورے پر ترقیاتی منصوبوں کی وضاحت فراہم کی گئی۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ایرانی سائنسدان فارماسیوٹیکلز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ایٹمی تحقیق علمی جہاد اور خالص قومی خدمت کی علامت ہے۔ مغرب کی خدشات اور IAEA کی نگرانی برقرار رہے گی، جبکہ اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ ہیں، مگر ایران پرعزم ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ ایران مغربی دباؤ کے باوجود ترقیاتی ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ سمیت مغربی کنارے میں بربریت جاری ہے۔ غزہ شہر میں سبزی منڈی پر اسرائیلی فوج نے ڈرون حملہ کیا اور 24 گھنٹوں میں صہیونی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ قابض اسرائیلی فوج نے مزید 21 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ شہداء کی تعداد 68,858 ہو چکی ہے۔ 1,70,664 فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں روزانہ 145 امدادی ٹرک کو داخلے کی اجازت دی ہے، جبکہ امن معاہدے میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کا داخلہ طے ہوا تھا۔ مسلم اور عرب ممالک کے نمائندے پیر کو استنبول میں ملاقات کریں گے۔ اجلاس میں غزہ امن معاہدے اور غزہ ٹاسک فورس پر بات چیت متوقع ہے، جبکہ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری ہیں اور مزید 4 لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل استنبول کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ ترک وزیر خارجہ کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار فلسطین بالخصوص غزہ سے اسرائیل کے مکمل خاتمے پر زور دیں گے۔ اجلاس میں فلسطینیوں کی بلا روک ٹوک انسانی امداد پر بات ہوگی۔ اجلاس کے شرکاء غزہ کی تعمیر نو کی ضرورت پر بھی بات کریں گے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ افغان ترجمان کی جانب سے بدنیتی پر مبنی اور گمراہ کن تبصروں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز پر تمام پاکستانیوں بشمول ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق رائے موجود ہے۔ پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ افغان طالبان رجیم کی طرف سے بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی وحشیانہ دہشت گردی سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اس کے ارادے یا طرز عمل کے بارے میں کوئی وہم نہیں رکھتے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ غیر نمائندہ افغان طالبان رجیم ہے جو گہری اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر واقع CTD پولیس اسٹیشن میں بارودی مواد کے شارٹ سرکٹ سے دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ واقعے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ IG پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ شہید اہلکار کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ پشاور سے شہزادہ فہد رپورٹ کر رہے ہیں۔ پشاور کے CTD تھانے میں دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ دھماکے کے بعد IG خیبر پختونخوا پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG CTD سے 5 دن میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دھماکے میں ایک اہلکار شہید 2 زخمی بھی ہوئے۔ دھماکے کے بعد CTD انویسٹیگیشن ٹیم نے پولیس اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے۔ جائے وقوع سے شواہد اور CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے نوٹس لیتے ہوئے IG پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعے کی وجوہات جاننے اور حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ CTD پولیس اسٹیشن دھماکے میں شہید CTD پولیس اہلکار بلال خان کی نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر فیصل کریم کنڈی، IG پولیس ذوالفقار حمید، CCPO، پاک آرمی حکام سمیت شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا اور پولیس حکام نے شہید کی بلند درجات کے لیے دعا بھی کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے گرفتار 4 دہشت گردوں کے تفتیش کے دوران اہم انکشافات۔ گرفتار ملزم اجلال زیدی اور فراز نے کئی اہم انکشافات کیے۔ ملزم اجلال ماضی میں بھی قتل کی وارداتیں کر چکا ہے۔ تفتیش میں انکشاف 2011 میں مذہبی ٹارگٹ کلنگ کی۔ اس کے علاوہ ملزم فراز 2022 میں قتل کی وارداتوں میں ملوث نکلا۔ ملزمان کو پڑوسی ملک میں موجود شخص ہدایات دیتا تھا۔ اجلال کو پڑوسی ملک 3 سے 4 دفعہ ڈنکی لگا کر بلایا گیا۔ اجلال تربیت حاصل کر کے واپس آ جاتا تھا۔ کراچی میں ٹارگٹ ملنے پر ریکی کی جاتی تھی اور پھر ٹارگٹ کو ہدف بنایا جاتا تھا۔ ملزمان کو پڑوسی ملک سے ٹارگٹ ملنے کے بعد کراچی میں نامعلوم لوگ بائک اور اسلحہ فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کو جیل سے چھڑانے کا بھی خرچہ دیا جاتا تھا۔ کالعدم علیحدگی پسند تنظیم سے مبینہ تعلق آور بارودی مواد رکھنے کے مقدمے میں گرفتار 2 ملزمان کو اسپیشل ڈیوٹی میجسٹریٹ نے مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
CTD हुकाम ने कदम अलहदगी पसंद तंजीम से ताल्लुक और बारूदी मवाद रखने के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान सरमत अली और गनी अमान चांडियों को सख्त सिक्योरिटी में स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया। पुलिस की भारी नफरी भी अदालत के अतराफ तैनात रही। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करना है, लिहाजा मुल्जिमान का 1 रोजा राहदारी रिमांड दिया जाए। समाअत के दौरान कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइच समेत सीनियर वकला रहनुमा भी वकला सफाई के हमरा अदालत में पेश हुए। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि CTD ने बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट निसार अहमद चांडियो ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम गनी अमान चांडियो और सरमत अली को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 63 के तहत मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए CTD हुक्काम को उन्हें फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दे दिया। कराची में पुलिस हिरासत में नौजवान शहरी इरफान की मौत का मामला FIA एंटी करप्शन सर्किल ने पुलिस के 4 एहलकार और दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के 6 एहलकारों पर इल्ज़ाम यह है कि ज़ेरे हिरासत शहरी इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ है। मुकदमे में मुल्ज़िम ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ को ज़ेरे हिरासत लिया गया है। बाकी 4 मुल्ज़िम पुलिस एहलकार मफरूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना खान ने कहा है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस गए थे। सुहेल आफरीदी उस दिन पेशावर में मौजूद थे। इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पेशावर मोवन खसूसी बराए इतलात शफीउल्लाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मीना खान बोले, काबीना के पहले इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुहेल आफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया, उनको समझ आ जानी चाहिए कि सुहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की और फिर वो चुप भी हो गए और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। माह अक्टूबर फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के लिए दहाई का मोहलिक तरीन महीना साबित हुआ। एक माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 355 दहशतगर्द हलाक, 22 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर का महीना दहशतगर्दों के लिए हलाकत खेज। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 355 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। TTP सरबराह का नायब भी अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में 29% इजाफा देखा गया। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के जानी नुकसान में 19% कमी आई। अक्टूबर के महीने में 72 सिक्योरिटी एहलकार और 30 आम शहरी दहशतगर्द हमलों में शहीद हुए, जबकि 92 सिक्योरिटी एहलकार और 48 शहरी जख्मी भी हुए। अक्टूबर में TTP के सरबराह नूर वली महसूद का नायब कारी अमजद मारा गया, जो 2007 में तंजीम के क़याम के बाद से सबसे नुमाया हदफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिपेंडेंट ग्रुप और उसके सरबराह एहसन भून को इस्लामाबाद बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में वाज़े बरतरी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने एहसन भून, इंडिपेंडेंट ग्रुप और जीतने वाले तमाम वकला के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा, वकला बरादरी जमहूरियत के इस्तेहकाम, इंसाफ की फ्राहमी और शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करती है। नौमुंतखब नुमाइंदे दियानतदारी, पेशावराना महारत और जिम्मेदारी के जज्बे के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। वकला अदलिया और कानून की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल हैं और उनसे मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया भी है। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हसन रजा की आप रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 योम की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असलहा की नुमाइश ममनू है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की इशात और तकसीम भी ममनू करार दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन मान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद ऑफिसर्स, अहलकार और अदालतें भी पाबंदी से मुस्तस्ना है। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है, बताएंगे फैसलाबाद से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर। की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मोक की शिद्दत कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 240 पॉइंट से ज़ायद है, जबकि भारतीय शहर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 से ज़ायद है। माहिरीन सेहत की जानिब से ये तनबीह भी की जा रही है कि स्मोक के असरात से बचने के लिए या उनको कम करने के लिए घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं। स्मोक से दिल के मरीज़, बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और माहिरीन सेहत का इस हवाले से यही कहना है कि बच्चे, बूढ़े और ख़ास तौर पर दिल के, सांस के, फेफड़ों के अमराज के शिकार अफराद खुसूसी एहतियात करें ताकि स्मोक के ख़तरे से बचा जा सके। जी, सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने का फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। कल से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। इसके अलावा खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। DG माहौलियात पंजाब ने आगाह भी कर दिया। कहा खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बाइस स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई।